Okay. Okay, so we should start with this now. Be in the waiting room now. So we are now done with the history of epidemiology as well. And now we'll start with the importance of rates in epidemiology. Epidemiology में या महामारी विज्ञान में rates की या दरों की क्या महत्ता है ये हम आज समझेंगे. Epidemiologists are concerned with numbers. Okay, so that is the first fact that you should be clear. Epidemiologists have to deal with numbers and they are concerned with numbers. उनको आंकड़ों से सरोकार होता है. Numbers का मतलब है आंकड़े. अब इसमें जो प्राइम इंपॉर्टेंस के दो नंबर्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो है नंबर ऑफ केसेस. केसेस की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ. People afflicted with the disease in epidemiological context are defined as cases, or people who are sick are called as cases. So number of cases, that is number of people who are sick, or number of people that are afflicted with the disease. The second number that is of prime importance in epidemiology is the number of deaths. मृत्यु के आंकड़े. तो बीमारी के आंकड़े और मृत्यु के आंकड़े, ये दो आंकड़े महामारी विज्ञान में of prime importance in epidemiology are these two numbers, that is number of cases and the number of deaths. So cases is the number of people who are sick or people affected with the disease, and number of deaths. ये numbers, ये आंकड़े अपने आप में लेकिन अकेले आपको किसी बीमारी के विस्तार की, किसी पॉपुलेशन में किसी बीमारी के विस्तार की संपूर्ण जानकारी नहीं प्रोवाइड करते. ये सिर्फ नंबर्स बताते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको, इसीलिए मैं आंकड़े निकाल के लाई हूँ. मैंने इसके पहले जो आंकड़े आपको बताए थे वो सारे गलत थे, तो उसको आप जो मैंने पिछले उसमें बताए थे क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं थे, तो इसलिए मैंने अपने सामने विंडो खोल ली है और मैं आपको बताती हूँ वो आंकड़े क्या है. वो बंद नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपसे कुछ कैलकुलेशंस करवाऊंगी. ठीक है, आंकड़े नोट करिए. इंडिया कोविड ट्रैकर, मैंने ये खोला हुआ है. तो 6 दिसंबर को जो डेटा है, कंफर्म्ड केस कोरोना केसेस इन इंडिया, नोट डाउन करिए. कंफर्म्ड कोरोना केसेस इन इंडिया 96 lakhs. Students, are you noting down the details? Please note down these numbers. Total confirmed COVID-19 cases in India as on 6th December 2020, 96 lakhs, 96 and then 5 zeros. Okay? Somebody unmute yourself and then tell me whether you've noted these details. Yes, ma'am. Good. Now, the total number of deaths in India due to COVID-19 as on 6th December, 1,40,000. 1,40,000. ये मैं राउंड ऑफ नंबर्स बता रही हूँ आपको, 2 to 4 उतना नहीं जा रही हूँ. 1,40,000 यानी 1 4 and then 4 zeros. 1 4 and then 4 zeros. Now, note down the Italy COVID tracker details. Total confirmed cases of COVID-19 in Italy as on 6th December are 17 lakhs. 17 and then 5 zeros. 17 and then 5 zeros. And total deaths in Italy as on 6th December due to COVID-19 are 59,000. 59 and then 3 zeros. 59 and then 3 zeros. Now note down the population of, now if you look at these numbers, total confirmed cases in Italy till date 17 lakhs
and total confirmed cases in India 96 lakhs. Which number is bigger? Number of confirmed corona cases in India or number of confirmed corona cases in Italy? Which number is bigger? Number India is bigger, ma'am. Confirmed cases of India and Italy. And Italy is 17 lakhs. As of Italy. total number of deaths in India till date are 1,40,000 and total number of deaths due to COVID-19 in Italy are 59,000. 59,000. These are round off numbers. I'm not giving you 59514. 59,000 is the number that you should note down. Now note down the population of India as of date, round off population, 1.3 billion. 1.3 billion. That is 13 and then 8 zeros. 13 and then 8 zeros. 13 and then put 8 zeros after that. Total population of Italy as on date is 60 million, 60.4 million. That is 604, write 604 and then 5 zeros. Add 5 zeros to that. 604 and then add 5 zeros to that. 604 and then add 5 zeros. So this is the absolute number. Total population of India as on date is 1.3 billion. So you should write it as 13 and then add 8 zeros after that. And total population of Italy as on date is 60.4 million. So write 604 and then add 5 zeros to that. Done? Done? Yes, ma'am. Okay. So now, I don't know what would be the result of this calculation, but then write 17 lakhs, 17 and then 5 zeros, 17 and then 5 zeros, total number of confirmed COVID-19 cases in Italy, 17 lakhs divided by, you have to calculate, divided by 50, sorry, the population of Italy, divided by 604 and then 5 zeros. Tell me the result. $604 and then add 5 zeros after that. So 17 lakh divided by 604 lakh. 17 lakh divided by 604 lakh. 604 lakh is the total population as on date. Ma'am, 0.028. Sorry? 0.028. 0.028. Okay, so that means the strike rate of COVID-19 in Italy as on date is 0.028 per lakh. Okay, so that means out of every 1 lakh people, there is a possibility of 0.028 people getting affected with COVID-19, okay, or falling prey to COVID-19. Now we'll do the same calculation for India. Total number of confirmed cases for India as on date are 96 lakhs, round off figure, 96 lakhs, 96 and then add 5 zeros after that. And this number is to be divided by total population of India as on date, that is 13,800 lakhs, which means write 13 and then add 8 zeros after that. 13, add 8 zeros after that. So this is 13,000 lakh. Population of India as on date, round off, is 13,000 lakh. And 0.007. Point? 0.00738. Yes, ma'am. 0.00738. 0.007. 738.
.007 is the strike rate for COVID-19 in India, 0.007 per lakh. So 0.028 is the strike rate for COVID-19 in Italy, and 0.007 is the strike rate for COVID-19 per lakh in India. So which number is bigger? The strike rate for Italy is bigger than that of the strike rate for India, or the strike rate for India is bigger than that of the strike rate for Italy? Italy is bigger, ma'am. 0.028 or 0.028 is bigger than 0.007? 0.028 is bigger. 0.028 is bigger. Huh? So that means Yes, ma'am. per 1 lakh people, there is a possibility of, or not the possibility, these are the actual results. 0.028 people are falling prey to COVID-19, while in India, per 1 lakh people, 0.007 people are falling prey to COVID-19, which means that if you divide 0.028 by 0.007, so that many times, whatever the answer would be, that many times the strike rate is higher in Italy as compared to that in India. Okay? समझ में आया आपको? Students? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया, ये स्ट्राइक रेट है या मॉर्बिडिटी रेट है फॉर कोविड-19 इन इंडिया एंड इटली. तो इटली में आज तक के जितने कंफर्म्ड कोविड-19 केसेस हैं उनको आपने डिवाइड किया बाय द टोटल पॉपुलेशन. एवरीबडी ससेप्टेबल टू कोविड-19. So total susceptible population, total number of confirmed cases divided by total susceptible population, which is the total population, and total number of confirmed cases in India divided by the total population of India as on date. The strike rate or morbidity rate for COVID-19 for Italy is 0.028 and the rate for India is 0.007 per lakh. So which means if you had looked at the actual numbers, only the actual numbers, that is 96 lakh total confirmed cases in India versus 17 lakhs total confirmed cases in Italy, these numbers give you a perception that India is performing much worse than Italy. But when you compare the rates, the strike rates or the morbidity rate for COVID-19, it tells you it gives you the real picture, that is per capita strike rate is much lower in India as compared to that in Italy. So per lakh, 0.028 people are falling prey to COVID-19 in Italy, whereas per 1 lakh people, only 0.007 people are falling prey to COVID-19. Or if you want to make it more comparable, per just a second. Give me a second. What was the result? 0.028 per lakh and 0.007 per lakh. So that means per 100 people in Italy, 28 people are falling prey to COVID-19, and per 100 people in India, only 7 people are getting affected or falling prey to COVID-19. Okay? So if you convert the data for per 100, that is percentage, so 28% are falling prey to COVID-19 in Italy, and only 7% is the strike rate for COVID-19 in India. Okay? समझ में आया? अरे यार खामोश रहो. समझ में आया? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. सबको आया समझ में?
Yes, ma'am. जी मैम 0.08 को आप लेकिन ये तो कम है मैम पीएस कर रहे हैं मास्टर इन पब्लिक है मेरा डिग्री और ले लें पर 100 लखनऊ यूनिवर्सिटी जी मैम हाँ, तो पर 100 in Italy 28 per out of 100 people 28 people are getting affected with COVID-19 or are affected with COVID-19 and out of every 100 people yeah, only 7 people are affected or the morbidity rate of COVID-19 comparable morbidity to COVID-19 in Italy. This is performing much better than Italy. Rate or the morbidity rate for COVID-19 is concerned. Absolute numbers for India are much bigger, 96 lakhs total confirmed, 70 lakh total confirmed. चल रहा है म्यूट कर लीजिए Just must also know the total number of the susceptible population so that rates can be calculated. That is why rates are important. Absolute numbers themselves do not give you the complete picture of the extent of disease in the community. Now, what is the definition of rate? Rate क्या दर होती है? Ma'am, voice not clear. Now is it Ma'am, voice not clear. voice is not clear? My voice is not clear? मैम वो अनम्यूट करा हुआ है मैम अनम्यूट करा हुआ है म्यूट करा हुआ है किसने म्यूट करा हुआ है अच्छा somebody has unmuted himself or herself everybody please mute yourself the rate is the वहीद म्यूट कर लीजिए प्लीज so a rate is the number of events now events comprise of births cases of disease or deaths okay so number of events में आते हैं births कुल जन्म की संख्या cases of disease कुल बीमारियों के cases और deaths यानी कुल मृत्यु के cases ये number of events form करते हैं a rate is the number of events in a given population over a given period or at a given point in time जैसे अगर ये जो टोटल कंफर्म्ड केसेस वाला जो आंकड़ा है तो ये स्ट्राइक रेट जो आपने निकाला है ये ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम है यानी कोविड-19 की उस कंट्री में शुरुआत से लेकर आज 6 दिसंबर 2020 तक टोटल कंफर्म्ड केसेस कितने हैं उसको आपने जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है एज ऑन डेट उससे डिवाइड किया तो ये ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम स्ट्राइक रेट निकल कर आया if I ask you to find out the strike rate or the morbidity rate at a given point in time that is in November or in December or in October or August or January or February then you would put in the value of the number of the total confirmed cases in January known in January 2020 divided by the total population of that country or region in January 2020 and that would give you the strike rate or the morbidity rate for COVID-19 or for any other disease at that point in time. That is January 2020. Likewise, you can calculate the strike rate or the morbidity rate for any month or any given point in time. So the rates can be calculated over a given period or at a given point in time. एक समय के एक बिंदु के लिए भी आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और एक समय काल के लिए भी आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसको अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो दर रेट को हिंदी में दर कहते हैं एंड इट इज द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यानी ये कुल ऐसे इवेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं इवेंट्स को हिंदी में
चलिए हम इवेंट्स ही बोलते हैं, फिलहाल मुझे हिंदी का शब्द इसके लिए ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये कुल ऐसे इवेंट्स की संख्या है। इवेंट्स में, एपिडेमियोलॉजी में इवेंट्स का मतलब होता है या तो कुल जन्म की संख्या, कुल बीमारी की संख्या मतलब केसेस की संख्या, बीमारियों के केसेस की संख्या, या कुल मृत्यु। तो ऐसे जो आंकड़े हैं, इनको जब आप किसी एक समुदाय में या जनसंख्या में किसी एक समय काल या समय के एक बिंदु के लिए जब आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट को हिंदी में क्या कहते हैं, जब आप गणना करते हैं, जब आप गणना करते हैं तो वो दर कहलाती है। Generally, there are 3 general categories of rates that are important in epidemiology. That is natality or birth rates. So natality rate is as good as birth rate. And morbidity rate को sickness rate भी बोलते हैं. And the third one is mortality or fatality or death rate. So mortality rate is the same as fatality rate or death rate. So there are 3 general categories of rates. 3 प्रकार की दरें होती हैं एपिडेमियोलॉजी में। जन्म दर, जिसको अंग्रेजी में नेटेलिटी रेट या बर्थ रेट बोलते हैं, फिर बीमारी की दर, मॉर्बिडिटी या सिकनेस रेट बोलते हैं, और मृत्यु दर, जिसको मोर्टेलिटी या फेटेलिटी या डेथ रेट बोलते हैं। ये तीन रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एपिडेमियोलॉजी में। अब रेट्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुकी हूँ इसलिए होते हैं क्योंकि आंकड़े अपने आप में एब्सोल्यूट नंबर्स सही जानकारी नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये अभी हमने इटली और इंडिया के लिए कंपेयर किया ही ना, अगर आप टोटल कंफर्म्ड केसेस सिर्फ देखेंगे तो 96 लाख टोटल कंफर्म्ड केसेस हैं राउंड ऑफ इंडिया में और 17 लाख टोटल कंफर्म्ड केसेस हैं इटली में। सिर्फ इन आंकड़ों को सुनकर अगर आपको न्यूज से ये जानकारी मिल रही है कि भारत में अब तक कोरोना के 96 लाख मरीज कोरोना से संक्रमित हुए और इटली में कोरोना से 17 लाख मरीज संक्रमित हुए, तो ये जानकारी सुनकर आपको ये लगेगा कि भारत में कोरोना का प्रकोप इटली के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। लेकिन ये आंकड़ा पूरी संपूर्ण जानकारी या बीमारी की संपूर्ण विस्तार की जानकारी आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन भी देखना होगा। 1.3 बिलियन में यानी 13,000 लाख की जनसंख्या में सिर्फ 96 लाख संक्रमित हुए हैं कोरोना से भारत में, जबकि 604 लाख की कुल जनसंख्या में 17 लाख संक्रमित हो चुके हैं इटली में। यानी बीमारी की जो स्ट्राइक रेट है, जो आक्रमण दर है बीमारी की, वो इटली में ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। या तो इसका कारण, अब अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी डिजाइन करेगा या साइंटिस्ट एक स्टडी डिजाइन करेगा कि इन दोनों स्ट्राइक रेट्स में डिफरेंस का कारण क्या है। 2 अलग देशों में, इटली और भारत में, अगर स्ट्राइक रेट्स में इतना अंतर है 0.028 पर लाख वर्सेस 0.007 पर लाख, तो इस स्ट्राइक रेट में अंतर का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इटालियंस के मुकाबले इंडियंस की इम्यूनिटी ज्यादा हो। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इटालियंस के मुकाबले भारतीय ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि इटालियंस के मुकाबले भारतीयों में ज्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं, हम उतने टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल कंफर्म्ड केसेस हमें उतने नहीं मिल रहे हैं जितने एक्चुअल केसेस हैं। एक्चुअल केसेस हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन टोटल कंफर्म्ड केसेस जो टेस्ट के बाद सामने आए हैं वो सिर्फ 96 लाख है। हो सकता है आंकड़ा इनसे ज्यादा हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन पर जब आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, तब आपको सही इन दोनों आंकड़ों में अंतर की सही जानकारी पता लगेगी कि क्या भारतीयों की इम्यूनिटी इटालियंस के मुकाबले ज्यादा है जो स्ट्राइक रेट में इतना अंतर, क्या भारतीय ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं इटालियंस के मुकाबले जो कोरोना का स्ट्राइक रेट इटली में भारत के मुकाबले ज्यादा है, या भारत में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं टोटल कंफर्म्ड केसेस के वो एक्चुअल कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं है। एक्चुअल कोरोना पॉजिटिव केसेस शायद इससे ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि लोग टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं, इस वजह से आपको सही जानकारी नहीं मिल पा रही।
तो इसलिए रेट्स, दरें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप कंपेयर करना चाहते हैं दो टाइम पॉइंट्स में या दो प्लेसेस में, बिटवीन टू डिफरेंट पॉपुलेशंस और टू डिफरेंट प्लेसेस और टू डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। जब आप इवेंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं उस सिचुएशन में दरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इसीलिए एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम सिर्फ बीमार या मृत्यु की संख्या देखें तो भारत और इटली में जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली भारत में कुल मृत्यु अभी तक, इटली में कुल मृत्यु कोविड-19 से मरने वालों की संख्या है 59,000, जबकि भारत में कोविड से मरने वाले लोगों की कुल संख्या है 1,40,000। तो ये भारत में आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, 1,40,000 कंपेयर टू 59,000 इन इटली। लेकिन जब आप दर कंपेयर करते हैं 1,40,000, सिर्फ 10 मिनट ही बचे रह गए, मैं जल्दी करती हूँ। अब ये कंपैरिजन तो आपको समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ कि मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टेशन डेथ्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल ट्रैवल से, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी, रिक्शा, ऑटो, ऑटो का मतलब सिर्फ ऑटो नहीं है जैसा हम भारत में समझते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब है कि आप सड़क परिवहन का जब वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एयरप्लेन मोड से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में किसमें मृत्यु दर ज्यादा है या एक्सीडेंट से मृत्यु दर ज्यादा कितनी है। तो अगर आप मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक गिवन टाइम पीरियड में 6 महीने मान लीजिए या 1 साल में 1,000 लोग, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल में 1,000 लोग ऑटोमोबाइल क्रैशेस में या सड़क दुर्घटना में 1,000 लोगों की मृत्यु होती है, और उसी समय काल में यानी 1 साल में 50 लोग एयरप्लेन क्रैशेस। तो सिर्फ ये आंकड़े या संख्या सुनकर आपको लगेगा कि ऑटोमोबाइल या सड़क परिवहन से मरने वालों की संख्या 1,000 है और एयरप्लेन क्रैशेस में 1 साल में मरने वालों की संख्या 50 है। तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे सिर्फ इन आंकड़ों को देखकर कि सड़क परिवहन में मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एयरप्लेन क्रैशेस। लेकिन ये पूरी जान पिक्चर नहीं, आपको टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में इन आंकड़ों को देखना होगा। अब इस केस में टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि सड़क परिवहन का इस्तेमाल देश की पूरी जनसंख्या ने पूरे 1 साल में नहीं किया, पूरे देश की जनता ने पूरे 1 साल में नहीं किया, या एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल समस्त देश की जनता ने पिछले 1 साल में नहीं किया है। तो मान लीजिए हम जानकारी जुटाने के बाद इस नतीजे पर हमें ये जानकारी मिली कि पिछले 1 साल में 1 लाख लोगों ने ऑटोमोबाइल ट्रैवल यूज किया है, सड़क परिवहन का इस्तेमाल किया है 1 लाख लोगों ने, और उसी 1 साल में 1,000 लोगों ने एयर ट्रैवल का इस्तेमाल किया। अब 1 लाख, जब आप मृत्यु दर कंपेयर करेंगे तो 1,000 लोग पिछले 1 साल में सड़क पर दुर्घटना में मरे और 50 लोग वायु दुर्घटनाओं में मरे, मतलब वायुयान दुर्घटनाओं में मरे, एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में मरे, एयरप्लेन क्रैशेस में मरे। कुल सड़क परिवहन इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या पिछले 1 साल में 1 लाख थी, और कुल एयरप्लेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करने वालों की संख्या पिछले 1 साल में 1,000 थी। जब आप डिवाइड करेंगे 1,000 बाय 1 लाख और 50 बाय 1,000, तो आपको जो रेट निकल कर आएगा, आंकड़ों से आपको लग रहा था कि ऑटोमोबाइल क्रैशेस में, सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या एयरप्लेन क्रैशेस में मरने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन को, ससेप्टेबल पॉपुलेशन इस केस में पॉपुलेशन एट रिस्क हो जाएगी। अब रिस्क उसी को है जो ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवल नहीं कर रहा है उसको रिस्क नहीं है। इसलिए इस केस में हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ पॉपुलेशन एट रिस्क से, वो पॉपुलेशन जो खतरे में, जिसने खतरा मोल लिया। जब आप ट्रैवल करेंगे तभी आप खतरा मोल ले रहे हैं ना। तो अगर आप सड़क परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खतरा मोल ले रहे हैं, या एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खतरा मोल ले रहे हैं। घर में बैठे व्यक्ति को, ना तो घर में बैठा व्यक्ति सड़क दुर्घटना में नहीं मरेगा, या घर में बैठा व्यक्ति एयरप्लेन क्रैश में नहीं मरेगा। तो इसलिए इस केस में टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एट रिस्क दूसरी हो जाएगी, जिन्होंने ट्रैवल में हिस्सा लिया। जब आप कैलकुलेट करेंगे इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल के लिए,
तो इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाय 1 लाख विच इज 0.01 या 1/100। ये ऑटो मोड के लिए, ऑटोमोबाइल सड़क परिवहन के लिए, और एयरप्लेन मोड के लिए 50/1000 है जो कि 0.05 या 5/100 हो जाएगा, which means that out of every 100 people only 1 person died in automobile crashes। सड़क प्रति 100 व्यक्ति जिन्होंने सड़क परिवहन का इस्तेमाल किया उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, जबकि प्रति 100 व्यक्ति जिन्होंने एयरप्लेन मोड ऑफ ट्रैवल का इस्तेमाल किया उनमें से 5 व्यक्तियों की मृत्यु एयरप्लेन क्रैश में हुई। यानी एयरप्लेन क्रैश से मरने वाले लोगों की जो मृत्यु दर है वो ज्यादा है कंपेयर टू सड़क परिवहन में मरने वाले लोगों की मृत्यु दर से। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? समझ में आया आपको? ये अंदर Yes, ma'am. numbers और रेट्स में जब आप कंपेयर करते हैं तो रेट्स आपको क्लियर पिक्चर देते हैं, क्योंकि वो पॉपुलेशन एट रिस्क या टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन को अकाउंट फॉर करते हैं, जबकि एब्सोल्यूट नंबर्स ये जानकारी आपको नहीं देते हैं। वो सिर्फ आपको मोटे मोटे नंबर बताते हैं कि इतनी संख्या यहाँ है, इतना आंकड़ा यहाँ है। लेकिन न्यूमरेट जब भी आप असली जानकारी या रियल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो याद रखिएगा हम लोग हमेशा न्यूमरेटर्स पे ध्यान देते हैं। न्यूमरेटर के क्या कोई वैल्यू नहीं है इन एपिडेमियोलॉजी विदाउट द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, यानी कितने लोग मरे तो आपको ये भी देखना है कि कितनी पॉपुलेशन एट रिस्क थी जिनमें से इतने लोग मरे। वैसे ही अगर इतने लोग बीमार पड़े तो कितनी पॉपुलेशन एट रिस्क थी जैसे इतने लोग बीमार पड़े। 130 करोड़ की जनसंख्या में 96 लाख लोग बीमार पड़े, जबकि 6 करोड़ की जनसंख्या में 17 लाख लोग बीमार पड़े। तो ये डिनोमिनेटर के बिना न्यूमरेटर की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए एपिडेमियोलॉजी में रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो आपको रियल पिक्चर बताती है। अब हम अगर आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, केसेस, रेट, केसेस की डेफिनेशन। तो केसेस आर पीपल अफ्लिक्टेड विद डिजीज और पीपल हु आर सिक। Rate is the number of events that occur in a given population in a given period of time or at a given point in time. Natality or birth rate is the number of live births divided by the total population. यानी कुल जीवित पैदा होने वाले शिशुओं की संख्या divided by total population, कुल जनसंख्या। Morbidity rate का मतलब है rate of illness in a population, यानी किसी भी जनसंख्या में बीमारी की दर, यानी कुल बीमार लोगों की संख्या अपॉन टोटल पॉपुलेशन। Mortality या fatality rate या death rate का, ये तीनों एक ही चीजें हैं, मृत्यु दर। इसका मतलब है number of total deaths in a population divided by the total population, यानी कुल मृत्यु की संख्या अपॉन टोटल पॉपुलेशन। Population at risk का मतलब है those in the population who are susceptible to a particular disease or condition, यानी जनसंख्या में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो किसी एक बीमारी अथवा किसी दूसरी अवस्था या मृत्यु के लिए ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिन्हें खतरा है, जिन्हें उस बीमारी से पीड़ित होने का या मृत्यु का खतरा है, ऐसे लोग पॉपुलेशन एट रिस्क बनाते हैं। और तो उस केस में जैसे मान लीजिए कोविड-19 में तो एवरीबडी इज ससेप्टेबल। कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें एवरीबडी इज नॉट ससेप्टेबल, मान लीजिए कोई एक जेंडर स्पेसिफिक डिजीज है। ओके, सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग द रेट फॉर अ जेंडर स्पेसिफिक डिजीज, लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर, हालांकि कैंसर मेल्स में भी होता है, लेकिन अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो जनरली हम ब्रेस्ट कैंसर के मेल्स में भी रेयरली होते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम जनरल एक रेट निकालते हैं फीमेल्स के लिए में क्या इंसिडेंस रेट है या प्रेवलेंस रेट है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिपोर्टेड दिस ईयर अपॉन टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, समझ गए आप? तो इस केस में आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड नहीं करेंगे ब्रेस्ट कैंसर का प्रेवलेंस रेट निकालने के लिए। इस केस में आप टोटल फीमेल पॉपुलेशन से ही अडल्ट फीमेल पॉपुलेशन से ही डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर टोटल फीमेल पॉपुलेशन, अडल्ट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन दिस ईयर।
क्योंकि मेल्स, और हालांकि रेयरली होता है मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन ये एक जनरल फिनोमेना नहीं है, वो एक एक्सेप्शन, समझ गए आप? तो पॉपुलेशन एट रिस्क यहाँ पर फीमेल्स कंप्राइज करती है, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क नहीं होगा, जबकि कोविड-19 के केस में पॉपुलेशन एट रिस्क टोटल पॉपुलेशन है, वो किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, अमीर को भी हो सकता है, गरीब को भी हो सकता है, फीमेल्स को भी हो सकता है, मेल्स को भी हो सकता है। तो उस केस में टोटल कोविड-19 की गणना करते समय हम टोटल पॉपुलेशन लेंगे, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस या प्रेवलेंस रेट निकालते वक्त हम टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स present in the country, adult females present in the country in that particular year or over that particular time period or at a particular point in time. समझ गए आप? Prevalence और attack rates पर ये morbidity rates में आते हैं। morbidity rates mainly 3 तरीके के होते हैं, इंसिडेंस इसके अलावा भी होते हैं, वो भी हम डिटेल